हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस दैट इज इनकोइस। इस संस्था के द्वारा निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये द हिंदू का आर्टिकल है 23 अगस्त 2021 का। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेपर में भी पब्लिश किया है। ओके, तो आप ये अलग अलग पोस्ट देख सकते हो। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन उन्होंने उनके साइट पे भी अपलोड किया है, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो इनकोइस सेंटर है, इट इज़ एन एटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकेटेड है प्रगति नगर, हैदराबाद में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट इनकोइस एंड regarding the different vacancies which are published by this particular organization. So here you can able to see the project scientist category 3. There are total 7 vacancies. Project scientist category 2, 15 vacancies. Project scientist category 1, 40 vacancies. Project scientific assistant category 2, 5 vacancies, and project scientific assistant category 1, 15 vacancies. तो दोस्तों, एक एक करके हम इस अलग अलग वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कैटेगरी 3 का इमोलमेंट सबसे हाईएस्ट है, 78,000 प्लस एचआरए ऐसा इमोलमेंट आपको मिलेगा। लेकिन इसके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। सो इफ़ यू हैव मास्टर डिग्री इन ओशन साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेट साइंस, जूलॉजी, फिशरीज, देन मरीन साइंसेस, मरीन बायोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजिकल ओशनोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी in mechanical from recognized university with 60% of marks. ओके, एंड यहाँ पे एंड बोला है, मतलब मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आई विल नॉट फोकस ऑन सच अ पोस्ट विच आस्क फॉर ह्यूज एक्सपीरियंस। so if you have experience, then do look into it, but I will straight away go ahead with the post of project scientist category 2 and category 1. In case of project scientist category 2, you will need the 3-year experience. So if you have 3-year experience with master degree or the PhD degree with respective field, then you can definitely apply for project scientist category 2. So here emolument is 67,000 plus HRA. Okay, so you can able to apply over here as per your qualification and the need of the different vacancies given over here. Okay, then most of the vacancies are for project scientist category 1. So here you can able to see 10 vacancies are for the engineering graduates, those who have done master degree in computer information technology, electronic and communication, civil, electrical, bachelor degree in engineering or technology in computer information technology. Okay, so same thing they have mentioned over here again with 60% mark in the qualifying degree or equivalent. Okay, अगर आपके पास उस फील्ड की PhD है तो और अच्छा है, इट्स अ डिजायरेबल बट नॉट इसेंशियल। ओके, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में चाहिए उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होने वाली है। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स फ्रॉम आर पढ़ाई से दोस्ती फैमिली, सो दे आर लुकिंग फॉर द प्रोजेक्ट scientist category 1 under geoinformatics or geophysics category. So here you can able to see the project scientist category 1. There are total 30 post. Okay, emolument is 56,000 plus HRA. And for geoinformatics geophysics student, here is a golden opportunity. Okay, so total 30 vacancies है। master degree in ocean science, atmospheric science, climate science, zoology, fisheries, marine science, meteorology, oceanography, physical oceanography, marine chemistry, marine biology, physics, mathematics, geoinformatics, geophysics, ocean technology, and naval architecture. Okay, or bachelor degree in engineering and technology with 60% mark in qualifying degree or equivalent. Okay, so if you have this essential qualification, okay, and if you are fresher, then also you can apply for this project scientist category 1 because they didn't mention anything about the experience. Okay, एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपके मास्टर डिग्री के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात की है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या PhD डिग्री है तो वो डिजायरेबल है बट नॉट इसेंशियल वन। ओके,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। इन सीटू एंड रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्चुअल साइट पे जाके आपको काम करना है और जो भी रिमोट सेंसिंग डेटा होगा उसको भी आपको ऑब्जर्व करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होगा। ओशन और एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग एंड डेटा एसिमिलेशन, जो भी सैटेलाइट डेटा है रिगार्डिंग ओशन एंड एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, उसका एनालिसिस करना और उसके उसका जो भी सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में ये यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, quality control and analysis of in situ and remote sensing data. The next one is enhancement of ocean information and advisory services related to marine ecosystem, ocean state forecast, oceanographic disaster, coastal geospatial and ocean data etc. Okay, so basically क्या है, जो भी coastal ecosystem है या जो भी नेचुरल डिजास्टर है नियर द इंडियन कोस्टल रीजन, तो उसके बारे में जो भी जियो स्पेशल स्टडी होता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे काम करना होगा। 24/7 शिफ्ट ऑपरेशन यहाँ पे रहने वाले, वर्क ऑन बोर्ड ऑन बोट एंड शिप एट द सी। तो जो भी हमारे रिसर्च वेसल्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो ऑटोनोमस बॉडीज है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आने वाली, तो उनके जो रिसर्च वेसल होते हैं उसके ऊपर आपको ऑन बोर्ड सी में काम भी करना होगा। R&D एंड टीचिंग एक्टिविटी, तो आपके जो जूनियर्स होंगे या कोई अवेयरनेस कैंपेन होंगे तो उसमें आपको टीचिंग एक्टिविटी भी करना होगा। एनी अदर जॉब दैट मे बी असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, जो भी वहाँ पे साइंटिस्ट है, जो भी सीनियर्स है, उनके द्वारा असाइन किया गया जो भी फील्ड वर्क है या जो भी एनालिसिस का वर्क है वो आपको यहाँ पे करना होगा। लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। ओके, सो डू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स फ्रॉम जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, जियोलॉजी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 2। तो यहाँ पे फिक्स आपको इमोलमेंट मिलेगा 50,000 का। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया है, साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उन्होंने मांगा है। ओके, एंड बोला है तो ये कंपलसरी है, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो ये जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिए हैं, GIS एप्लीकेशंस, GIS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होती है, तो अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1, उसका जो मंथली इमोलमेंट होगा वो होगा 39,000 पर मंथ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उस बेसिस पे और आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है तो उस बेसिस पे ये वैकेंसीज फिल की जाने वाली है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन था इनकोइस के द्वारा। कुछ जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे दी है वो एक बार देख लो। जितने भी पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है वो सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 22 सितंबर 2021। ये लास्ट डेट के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, और जो भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया दिए हैं वो क्राइटेरिया 22 सितंबर 2021 इस पर्टिकुलर डेट को सेटिस्फाई होने जरूरी है, तभी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है एक बार देख लेना। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आर मिनिमम एंड मेयर पोजेशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू कॉल फॉर इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम एज एप्लीकेबल। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो इसेंशियल क्राइटेरिया दिया है ये आपको ये सहूलियत तो देता है कि आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि आपको इंटरव्यू के लिए या रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल आएगा या आएगा। ओके, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आए तो जिनके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, और कम अगर उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म आते तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मीट कर रहे हैं उनको भी रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए वो कॉल कर सकते हैं। एग्जाम और इंटरव्यू माइट बी हेल्ड यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, a candidate applying or getting shortlisted for multiple posts will be interviewed only once and the selection committee will decide about the post to which he could be accommodated. सपोज आपने एक से ज़्यादा अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है, तो सब पोस्ट के लिए उनमें से जितने भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होने वाला है तो सारे पोस्ट के मिला के एक ही इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू के बेसिस पे जो सिलेक्शन कमेटी वो डिसाइड करेगी कि कौन सी पोस्ट आपको अलॉट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। ओके, candidate working in government or public sector undertaking
और एटोनोमस बॉडी मस्ट प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कोई ऑटोनोमस बॉडी या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू और द रिटर्न टेस्ट। ओके, एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पैरेलली कुछ जॉब कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला। आपके वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अगर आपने कोई जॉब किया है, कोई आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो आपका काउंट होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे इंस्ट्रक्शन है, आप एक बार देख लेना। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं ये सब पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सो आई विल अपलोड दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज पढ़ाई से दोस्ती टेलीग्राम चैनल। सो यू कैन एबल टू हैव अ लुक into the entire notification which and only the specific part which I have highlighted. Okay, and if you follow under specific category or specific reservation policy, then do read all the instruction given in that particular section. Okay, so इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिलेटेड जो भी एडेंडम या कोरिजेंडम आने वाला है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, वो इनकोइस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही डिस्प्ले होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया है दोस्तों, 1 से 3 नंबर की जो पोस्ट है, सीरियल नंबर 1 से 3 नंबर की, उसके लिए रिटर्न टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। और 4 या 5 नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ रिटर्न टेस्ट होने वाली है। अप्लाई कैसे करना है आपको, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में आपको सेंड नहीं करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते वक्त ही अपलोड करनी होगी। ओके, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया है, देखो दोस्तों, ये एड्रेस दिया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ पे जाने के बाद आपको अप्लाई करना है। ओके, और कोई भी हार्ड कॉपीज आपको सेंड नहीं करनी। जब आप इंटरव्यू के लिए या रिटर्न टेस्ट के लिए एक्चुअल इनको इसके कैंपस में जाओगे या जैसे भी उनका शेड्यूल होगा, उस हिसाब से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तब उनको दिखाने होंगे। ओके, so this is all about this particular recruitment. If you have any queries regarding submission of online application, don't hesitate to write an email on this particular email id। यहाँ पे email id मैंने हाईलाइट कर रखा है। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो तो इस email id पे आप वो क्वेरी को एड्रेस कर सकते हो। ओके, जो भी आपके इसेंशियल सर्टिफिकेट है उसके बारे में, उसकी पीडीएफ की साइज़ कितनी होनी चाहिए, फोटोग्राफ की साइज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ओके, तो इस हिसाब से ये पूरा एक नोटिफिकेशन था दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ओके, अगर आपके कैटेगरी या आपके डिग्री के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक जानकारी आपको चाहिए, तो डेफिनेटली जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वहाँ पे जितने भी इसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किए, सारे एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। So I hope this is helpful for you. If it is helpful, then do like the session, share with your friend, and don't forget to subscribe our YouTube channel, so you will get the notification of upcoming video session. So thank you and have a great day.